Assalamu alaikum. Today we're going to start lecture number 15 and we're also going to begin a new chapter which is chapter number 8 for us. Just to sort of give you a feel of what we're doing right now, we're just basically studying in detail the 4 functions of management. We've done a very detailed discussion on planning, which was chapter number 6 of your books. Then we did a great bit of discussion on organizing, which was chapter number 7 of your books. And today we're going to talk about staffing in organization. So the very first thing that we need to do is that let's just go and see what chapter number 8 is all about. Chapter number 8 is going to be about managing human resource. When I say managing human resource, I basically mean that human resource, when I say the term human resource, I basically mean the employees. या वो individuals जो organizations में hire होते हैं, वो individuals जो organizations में काम करते हैं. और जब हम managing human resource की बात करते हैं, so it automatically means कि जी an organization needs to determine कि उसको किस type की workforce चाहिए. An organization needs to determine कि उसको किस नंबर्स में वर्कफोर्स चाहिए, एंड जब वर्कफोर्स हायर हो जाएगी तो क्या उसकी ट्रेनिंग होगी, क्या उसकी डेवलपमेंट होगी, एंड देन फर्दर मोर उनकी अप्रेजल कैसे होगी, या उनकी परफॉर्मेंस चेक्स कैसे होंगे, एंड फाइनली उनकी कंपनसेशन पैकेजेस क्या होंगे. एंड व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, फ्रॉम हायरिंग टू सिलेक्टिंग टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड compensation and appraisal, this is all what chapter number 8 is about. A quick go through the chapter outline. First up, we're going to discuss the foundations of human resource management. What is human resource management? What does the term HR management means? Why is it important today? Second is staffing the organization. When I say staffing basically the word staffing जो है वो basically staff से निकला है. So आप organization में जब आप अपने human resource की बात करते हैं या आप अपने employees की बात करते हैं, that is basically what is meant when I say staffing the organization. Third up, developing the workforce. Okay, so you've hired people, but it's not necessary कि सारे के सारे individuals जो कि आपने hire किए हैं वो आपकी requirement के मुताबिक हों. Deficiencies हर individuals में होती हैं. उन deficiencies को overcome करना, उन deficiencies को ख़त्म करना, उन deficiencies को remove करना through training and development is what developing the workforce is about. Compensation and benefits. No individual, you or me even, would work for free. Everybody who works require money. उसको कुछ ना कुछ पैसा in return for the services that person is offering चाहिए होता है, and that is what your compensation and benefits includes. अब जहाँ पर इंडिविजुअल्स होते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 500 बंदा काम करता है, उस 500 बंदों में से बहुत सारों को ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कुछ ग्रीवियंसेस होंगी, कुछ इन सम सर्कमस्टांसेस ऑर्गेनाइजेशन माइट हैव इश्यूज विद द एम्प्लॉइज. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस फ्रॉम अ लीगल एस्पेक्ट एज वेल, कि जी लीगैलिटीज क्या इन्वॉल्व होती हैं HRM में, या व्हाट आर द लीगल इश्यूज विच employer as well as the employee needs to deal with. Then we're going to talk about कि जी with the changing workplace, जिस तरीके से workplace change हो रही है, उस reference से what are the new things that management and organizations need to look into, what are the challenges that they are facing, and how to equip managers so that they can meet these new challenges with reference to workforce more easily. Then we're going to talk about labor unions as well. We're going to define to you कि जी labor union क्या होती है और उनका purpose क्या होता है और उसको मैनेज या उनके साथ डील कैसे किया जा सकता है. एंड फाइनली वी गोइंग टू टॉक अबाउट कलेक्टिव बार्गेनिंग, एंड वी गोइंग टू टेल यू कि जी कलेक्टिव बार्गेनिंग होती क्या है और इसका रिलेशन विद लेबर यूनियंस क्या होता है, एंड इस पूरी पिक्चर में एम्प्लॉयर कहाँ आता है, एम्प्लॉय कहाँ आता है, लेबर यूनियंस कहाँ आती हैं, लेबर किधर आता है और कलेक्टिव बार्गेनिंग किधर आती है. So I hope from point 1 to the last point, this is all that we are going to discuss in this chapter, and this is pretty much the entire chapter as well. Right? So are you ready? Should we go on ahead? Good. Let's start with the first thing that we need to do. First up, we need to define what HRM is. Yeah, HRM is a very commonly used term in an organization. बहुत जी HRM policies क्या हैं, जी HRM practices क्या हैं, आप अपनी HR को manage कैसे करते हैं. So human resource management, or HRM as we will call it from in the future, is basically would relate to all activities which an organization does for attracting, developing and maintaining an effective workforce. So HRM में basically 3 different type
आपकी एक्टिविटीज़ आएंगी. First up, attracting applicants. Attracting applicants means that you need to advertise your jobs, you need to get the right kind of people for your jobs, you need to get people who have the right kind of knowledge and the right kind of abilities and the right kind of experiences, so that they could work effectively on the job. So that is what attraction is, کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کو کس طریقے سے زیادہ اٹریکٹیو بناتے ہیں for people inside or outside the organization, so that they are tempted to apply for various jobs in the organization. So the very first activity of HRM is attracting people. Second up is developing. Okay, you've attracted people and those applicants have applied for jobs in your organization and you've hired them. But as I said earlier as well, کہ ہر دفعہ ضروری نہیں کہ جو آپ بندہ ہائر کریں وہ کمپلیٹلی اس کو سب چیزیں آتی ہیں. فار اے ویری اسمال ایگزامپل, فار ایگزامپل if you're hiring servants in your house, maybe the person said that جی I'm a great cook, بٹ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ بریانی اچھی پکاتا ہو تو وہ قورمہ بھی اچھا بنائے. سو دیٹ مینس کہ ہاں بریانی تو وہ اچھی پکاتا ہے, بٹ قورمہ پکانے کے لیے you need to train that person as to how to cook that thing. Similarly, when you hire people in organizations, it is not necessary that all those people are good at everything you ask them to do. So a lot of time you need to remove those deficient areas, you need to remove those deficiencies, and the deficiencies can only be removed by developing your workforce, by developing your employees and training your employees. And finally, maintaining an effective workforce. Maintenance is very important. If every 2 months your employees are leaving, if every 2 months your workforce is leaving your organization and joining another, your company is losing on time, because آپ نے بہت زیادہ ٹائم انویسٹ کیا ان کو ٹرین کرنے میں, ڈیولپ کرنے میں اور اٹریکٹ کرنے میں. یو لوزنگ آن منی, بیکاز جب آپ نے اٹریکٹ کیا, آپ نے اخباروں میں ایڈ دیا, اتنے ٹریننگ سیشنز کی آپ کا پیسہ لگا, اینڈ یو لوزنگ آن ایفرٹ ایز ویل, بیکاز آپ کی اپنی آرگنائزیشن کی اپنی محنت لگی ان بندوں کو ٹرین کرنے میں, ڈیولپ کرنے میں. سو اٹ از امپیریٹیو, ویری ویری امپورٹنٹ کہ جب ایک بندہ آرگنائزیشن میں ہائر ہو جائے اور ٹرین ہو جائے اور ڈیولپ ہو جائے تو آپ اس کو ریٹین بھی کریں, آپ اس کو ود ان دی آرگنائزیشن مینٹین بھی کریں. بیکاز اگر کنٹینیوسلی آپ کا ٹرن اوور ریٹ از بیسکلی کہ کتنے جلدی آپ کے امپلائیز آرگنائزیشن چھوڑ کے دوسری آرگنائزیشن میں چلے جاتے ہیں. اف یور ٹرن اوور ریٹ از ویری ہائی, دین اٹ از کنسیڈرڈ اے ویکنیس ان دی آرگنائزیشن. سو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ دیٹ یو نیڈ ٹو اٹریکٹ, یو نیڈ ٹو ڈیولپ اینڈ یو نیڈ ٹو ریٹین اور مینٹین این افیکٹو ورک فورس. اینڈ مینٹیننس میں صرف ریٹینشن کی بات نہیں آئے گی. مینٹیننس میں آپ کا اپریزل سسٹم, آپ ان کو کس طریقے سے ایویلویٹ کرتے ہیں, آپ ان کے پرفارمنس چیکنگ کیسے کرتے ہیں, یا آپ ان کو کس قسم کی کمپنسیشن دے رہے ہیں, آپ ان کی سیلری کیا دے رہے ہیں, یا آپ ان کو ایکسٹرا بینیفٹس کیا دے رہے ہیں. آل دیز ایسپیکٹس وڈ آلسو بی انکلوڈیڈ ان مینٹیننگ این افیکٹو ورک فورس. نیکسٹ کوشچن از کہ جی وائی ٹوڈے HRM has become so important. کیا وجہ ہے کہ today everybody is really focusing on human resource management, or people think that human resource managers are one of the most important manager in an organization. The very first reason for the importance of HRM is legal issues. For the last 10-20 years, more and more people, more and more employees are becoming aware of their rights. میں کیا ایز این امپلائی میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا, میری کیا رائٹس ہیں, اور ان رائٹس کو اگر کوئی ٹرامپل کرتا ہے یا ان رائٹس کو ختم کوئی کرتا ہے تو واٹ آر دا ادر آپشنس آئی ایز این امپلائی ہیو ود می کہ میں کیا کر سکتا ہوں. سو بیکاز آف لیگل ایشوز HRM ہیز بیکم ویری امپورٹنٹ. پہلے کیا ہوتا تھا, امپلائیز کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا, ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ان کی رائٹس کیا ہیں. جب رائٹس معلوم نہیں ہیں تو پھر آپ کا امپلائر آپ کے ساتھ جو کچھ کرے کوئی مسئلہ ہی نہیں. However, today employees are very well aware of their rights, as a result of which the employers have to be a little careful. ان کو بھی رولز ریگولیشنز کو صحیح طریقے سے پڑھ کر پھر کام کرنا ہے. ایون اگر کسی کو فائر کریں گے تو وہ in accordance with the laws and in accordance with the regulation کریں گے, because اگر وہ نہیں کرتے then the employee can take the case to the court and sue the company کہ جن لوگوں نے مجھے غلط فائر کیا, ان لوگوں نے مجھے 3 months کا نوٹس نہیں دیا. So because of more awareness of legal laws, and because of more awareness of general laws related to hiring and employee benefits and employee protection, آپ کے جو employers ہیں they have become more careful in dealing with human resource now. Second is that it is
an undisputed fact that employees and productivity are directly related. If your employees are happy, if your employees are happy with whatever they're doing, their performance will enhance, and once their performance will enhance, automatically it's going to mean more productivity for the organization. Right? If that is right, then again, if your employee is unhappy, फिर क्या होगा? फिर उसकी परफॉर्मेंस सफ़र करेगी नेगेटिवली और कंपनी की प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली सफ़र करेगी. एम्प्लॉय को खुश करने का तरीका क्या है? एम्प्लॉय को खुश करने का तरीका ये है कि अगेन आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस जो हैं वो सही हों. जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं पहले पॉइंट में, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज अगर आप सही तरीके से अपने एम्प्लॉय को मेंटेन करेंगे, दैन दैट एम्प्लॉय इज गोइंग टू बी हैप्पी एंड इज गोइंग टू बी अ मोटिवेटेड एम्प्लॉय. एंड इफ दैट एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड एंड हैप्पी, then automatically it's going to reflect in his performance, and it's going to reflect in the company's profitability as well. When I say profitability, automatically it means productivity as well. More productivity is going to mean more profitability. And finally, poor HR management is expensive. I just told you earlier as well. Just assume कि जी आपके हर दूसरे महीने आपका individual जो है वो आपकी organization छोड़कर, या आपका employee जो है वो आपकी organization छोड़कर किसी और दूसरी organization में चला जाता है. And again, once that happens, if your turnover rate is very high, then you're losing on time. आपका time spent on that employee खराब हुआ. You're losing on money. आपने जो उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, उसको सैलरी देकर, उसको बेनिफिट्स देकर, उसको इंसेंटिव्स देकर, उसकी ट्रेनिंग करवाकर, उसको फॉरेन टूर्स में भिजवाकर, वो ज़ाया हुआ. और अगेन आपका एफर्ट भी ज़ाया हुआ, बिकॉज आपने खुद मेहनत की थी उसको डेवलप और ट्रेन करने में. एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जब आप अच्छी HR मैनेजमेंट नहीं करते, तो इन टर्म्स ऑफ मनी, एफर्ट एंड टाइम आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव एक एम्प्लॉय बन जाता है, जो कि कल को आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो छोड़ के चला जाए तो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव एम्प्लॉय बन जाता है. Now, whenever we're talking of human resource management, the very first step in human resource management is HR planning. सबसे पहला काम जो organizations करती हैं when they're thinking of employees and when they're thinking of hiring new employees is first thing that they do is something called as human resource planning. Human resource planning is, as the word says, कि जी आप अपनी human resource के लिए प्लान कर रहे हो. तो प्लानिंग जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी, इट्स द सेम थिंग. आपने कहाँ जाना है, वहाँ जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, और एंड में आप कंट्रोल करते हैं, देखते हैं कि जी आपकी प्लान और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है. सेम थिंग हैपन्स इन HR planning as well. The very first thing that you do in HR planning is you do a job analysis, which as the definition or as the word says is आप हर job को analyze करते हो. That is what job analysis is. You minutely study each particular job in your organization just to see कि उस job की क्या requirements हैं, उस job की क्या responsibilities हैं, उस job को करने के लिए आपको किस किस्म का individual चाहिए, उस job को successfully perform करने के लिए उस individuals में क्या abilities, क्या knowledge और क्या skill set होना चाहिए. So that is what a job analysis is. बारीकी से आप एक job को study करते हैं to see what that job is all about. Now, once you're doing a job analysis, or once you've done a job analysis, two very important documents come out of a job analysis. First up is a job description document, and the second is the job specification document. Job description document is a document which basically tells about the duties, responsibilities and working condition. So job description में आप बहुत clearly ये mention करते हो कि जी जो individual इस job को करने आएगा उसकी duties क्या होंगी, उसकी responsibilities क्या होंगी और वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी. इन शॉर्ट इट मीन्स कि क्या टूल्स की क्या रिक्वायरमेंट है उस जॉब में, किस किस्म का मटेरियल आप अवेलेबल करेंगे एम्प्लॉय के लिए, किस किस्म का इक्विपमेंट होगा, और इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्या है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए. सो जॉब डिस्क्रिप्शन आप हर जॉब्स के लिए बनाते हैं. इफ इट्स अ मार्केटिंग मैनेजर तो उस मार्केटिंग मैनेजर के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन बनेगी. एक असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर है तो उस असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन बनेगी. एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए बनेगी. एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए बनेगी. What a job description does is कि it basically removes ambiguities in a job.
I'm going off track now. What happens is, अगर आप में से कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कभी जिनको मौका मिला है इंटर्नशिप्स करने का या छोटी मोटी जॉब करने का, what you'll feel is कि जी जो फर्स्ट फ्यू वीक्स होते हैं या फर्स्ट मंथ होता है, that's the most difficult and the most awful month. Why? Because एक बंदा नया एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की होती है, ना उसको पता होता है कि उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ना उसको पता होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ना उसको पता होता है कि जी उसने क्या, उसके डिलीवरेबल्स क्या है, उसको किस किस्म की आउटकम प्रोड्यूस करनी है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो पूरा बेचारा, ना उसके दोस्त होते हैं, ना उसे कैफेटेरिया का पता होता है, ना उसकी किसी से बातचीत होती है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो पहले मंथ में बंदा कंप्लीटली कंफ्यूज होता है. एंड अगेन उसकी कन्फ्यूजन की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स भी ऑटोमेटिकली कम होंगे. इस कन्फ्यूजन को दूर करने का सबसे बेहतरीन और द बेस्ट वे टू रिमूव दिस कन्फ्यूजन इज हैविंग अ जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट, बिकॉज वंस यू गिव दैट जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट टू दैट इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल विल नो एग्जैक्टली कि जी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं और उसकी असाइनमेंट्स क्या हैं या उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है. ही वुड नो कि जी हर जॉब में उसको किस किस्म के टूल्स की रिक्वायरमेंट है, उसको किस किस्म का इक्विपमेंट चाहिए है, व्हाट सॉर्ट ऑफ information does he require for successfully completing his job. And वो जो ambiguity की हमने बात की है, जो हमने confusion की बात की, वो automatically ख़त्म हो जाएगी, because all the question that he needs to get answered, all the questions that he needs to answer कि जी मेरी जॉब क्या है, उसकी requirement क्या है, मुझे कैसे करना चाहिए, इसको मैं successfully कैसे कर सकता हूँ, या उसके आउटकम्स क्या होने चाहिए, all these questions will be answered in the job description document. So that is the importance of a job description document. And the second document that comes out of job analysis is again an important document, which is called as a job specification document. Now job specification document basically tells about the skills, abilities, qualification that are needed to perform a job successfully. So अगर आप इस संडे का अखबार खोलें और क्लासिफाइड्स में देखें कि जी फलाना ABC company requires a sales executive who should have at least a bachelor's degree or a BBA with specialization in marketing and should have 2 years prior experience and should have good communication skills. This is an example of a job specification जहाँ पर आप individuals को ये बता देते हो कि जी एक particular job को successfully perform करने के लिए आपको क्या skills, आपको क्या abilities और आपको क्या नॉलेज सेट चाहिए है. अगर अगेन इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के इंपॉर्टेंस हम इस बात से भी जान सकते हैं कि अगर आप जॉब स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे, देन आपको पता नहीं होगा कि आपको एग्जैक्टली किस टाइप का बंदा एक पर्टिकुलर जॉब के लिए चाहिए. आपको ये नहीं पता होगा कि आपको किस किस्म के स्किल्स, किस किस्म की एक्सपर्टीज चाहिए, या उस बंदे में किस किस्म की स्किल्स है, उस बंदे में किस किस्म की एक्सपर्टीज होनी चाहिए जो कि ये जॉब सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकता है. सिमिलरली जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होगी तो फिर वो कंफ्यूजन अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज भी होती रहेगी. सो द वेरी first thing that you do in HR planning is that you do a job analysis and you make a job description document and a job specification document. Job analysis की एक बहुत बड़ी importance इसलिए भी है because through job analysis an organization does 3 things. First, it helps in selecting people. Again, job specification के through आप specific हो जाते हो कि एक job के लिए आपको किस किस्म के लोग चाहिए, और जब आप select कर लेते हो तो उस individual को performance के reference से, job performance के reference से job description document help करता है. Second thing that job analysis helps in appraisal system. जब आपने individual को hire कर लिया, उसको organization में ले आए, आप जब तक उसकी responsibility उसके लिए clear नहीं करोगे through जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट, आप उसको किस चीज पर अप्रेज करोगे. अप्रेजल के लिए बहुत जरूरी है कि फर्स्ट आप यू टेल द पर्सन एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम एंड दैट यू डू थ्रू अ जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट. द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जॉब एनालिसिस इज इट हेल्प्स इन कंपनसेशन. आपने एक पर्टिकुलर स्किल सेट का बंदा हायर किया, उस बंदे को कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, अगर अगेन वो उनको परफॉर्म करने के लिए या उसको कंपनी में आने के लिए आप उसको कंपनसेशन पैकेजेस ऑफर करते हो, एंड देन फ्यूचर में विद रेफरेंस टू अप्रेजल एंड विद रेफरेंस टू द वर्क दैट ही इज परफॉर्मिंग आप उसको सैलरी उसकी इंक्रीज करते हो. ये काम आप अगेन नहीं कर सकोगे अगर उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट नहीं होगा, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं होंगी तो वो जॉब कैसे सही से परफॉर्म करेगा. जब जॉब सही से परफॉर्म नहीं होगी तो आप उसको किस चीज़ के लिए सैलरी रेज दोगे.
So because of these three reasons, again, job analysis becomes a very, very important document. The next thing that you do is, after the job analysis process, which is the first step of HR planning, is forecasting. आप second step में HR planning के second step में forecasting करते हो HR supply और HR demand को. पहले हम सप्लाई की बात करते हैं, फिर हम डिमांड की बात करते हैं. HR सप्लाई बेसिकली इज कि फ्यूचर में जो ऑर्गेनाइजेशन को बंदे चाहिए हैं वो आप किन किन सोर्सेज से ले सकते हो. ना जब हम HR सप्लाई की बात करेंगे तो हम इंटरनल सप्लाई और एक्सटर्नल सप्लाई की भी बात करेंगे. इंटरनल सप्लाई का मतलब ये है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि ट्रेन भी हो रहे होते हैं, डेवलप भी हो रहे होते हैं, और फ्यूचर में आप उनको एक नई पोजीशन पर अपॉइंट कर सकते हो, या आप उनको किसी और पोजीशन के लिए हायर कर सकते हो, या किसी पोजीशन के लिए प्रमोट भी कर सकते हो. सो इंटरनल सप्लाई सोर्सेज मींस कि आपको जो फ्यूचर में इंडिविजुअल्स चाहिए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फ्यूचर में आपको इंडिविजुअल्स क्यों चाहिए होंगे? बिकॉज मे बी योर ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग, मे बी you've opened up a new branch somewhere in Pakistan, maybe you want to take your business internationally. For all these reasons आपको individuals चाहिए. अब ये जो individuals कहाँ से आएंगे? ये सबसे पहले आपके internal supply sources होते हैं जो कि within the organization होती हैं, and second आपकी external supply sources होते हैं जो कि outside the organization होती हैं. आपके जो ये head hunters होते हैं, या जो employment agencies होती हैं, या बहुत सारी organization universities चली जाते हैं कि जी आप अपने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर इंजीनियर्स चाहिए, तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जाकर कहते हैं कि जी अपने टॉपर्स या अपने टॉप स्टूडेंट्स को बताइए, मे बी वी वांट टू टेक एन इंटरव्यू एंड वी वुड लाइक टू हायर देम. सो दे बिकम योर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सप्लाई. जब आप इंडिविजुअल्स को इंटरनली हायर करने के चक्रों में होते हो या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को कंसिडर करते हो, वो आपके इंटरनल सप्लाई सोर्सेज होते हैं, और जब आप एक्सटर्नल इंडिविजुअल्स को कंसिडर करते हो वो आपकी एक्सटर्नल सप्लाई सोर्सेज होते हैं. नाउ जब हम सप्लाई ऑफ HR की बात करते हैं तो हम रिप्लेसमेंट चार्ट्स की भी बात करते हैं. नाउ व्हाट्स अ रिप्लेसमेंट चार्ट? अ रिप्लेसमेंट चार्ट इज बेसिकली इट्स जस्ट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाऊं, इट्स गोइंग टू हैव सारा तारिक एट द टॉप, उसके नीचे इट्स गोइंग टू हैव मरियम, एंड उसके नीचे इट्स गोइंग टू हैव सरवत. नाउ व्हाट डज दिस रिप्लेसमेंट चार्ट मीन्स? फर्स्ट थिंग इट टेल्स यू कि जी इट लिस्ट और इट सॉर्ट ऑफ हैज इन इट इंपॉर्टेंट पोजीशंस. आप रिप्लेसमेंट चार्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए बनाते हैं. सेकेंड थिंग इट डज इज कि रिप्लेसमेंट चार्ट विल टेल कि एक इंडिविजुअल एक पोजीशन पर कितने अरसे रह सकता है. एंड द थर्ड थिंग दैट द रिप्लेसमेंट चार्ट इज कि अगर ये इंडिविजुअल सिस्टम से निकल जाए, या अगर ये इंडिविजुअल प्रमोट हो जाए, या अगर ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला जाए, तो इस इंडिविजुअल की जगह कौन सा दूसरा इंडिविजुअल ले सकता है. सो दैट्स द पर्पस ऑफ अ रिप्लेसमेंट चार्ट, और इट्स समटाइम्स इवन कॉल्ड अ सक्सेशन प्लानिंग. कि जी अगर मार्केटिंग मैनेजर्स, रिप्लेसमेंट चार्ट ये बताएगा कि अगर मार्केटिंग मैनेजर जो है, and again replacement charts are with names. आप सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं लिखोगे, आप नाम लिखोगे. मार्केटिंग मैनेजर अगर सारा तारिक है तो आप रिप्लेसमेंट चार्ट पर लिखोगे सारा तारिक, और सारा तारिक के नीचे आप लिखोगे मरियम. अब इसका मतलब ये होगा कि अगर सारा तारिक कल को ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चली जाती हैं तो नेक्स्ट इन लाइन फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर इज मरियम हबीब, राइट? सो दैट इज व्हाट योर रिप्लेसमेंट चार्ट्स डू, और दैट इज व्हाट वी कॉल अ सक्सेशन प्लानिंग as well, कि आपको बताता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल छोड़ दे तो उसकी जगह कौन सा दूसरा इंडिविजुअल है जो उसकी जगह ले सकता है. जो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेशन प्लानिंग या रिप्लेसमेंट चार्ट्स नहीं बनाती, वहां पर बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, बिकॉज एक इंडिविजुअल चला जाता है, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, आपके जहन में कोई बंदा और नहीं होता कि जी अगर ये छोड़कर चला गया तो दूसरा किसको बनाएंगे. सो इट इज अ लॉट ऑफ टाइम इट मेक्स सेंस कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिप्लेसमेंट चार्ट्स या सक्सेशन प्लानिंग करें. Second thing is skill inventories. Skill inventories are sometimes called as an employee information system, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने एम्प्लॉयज़ के जो स्किल सेट है, चाहे उनकी एजुकेशन हो, चाहे उनकी स्किल्स हो, चाहे उनके एक्सपीरियंसेस हो, या उनकी करियर प्रेफरेंस हो, आप उसको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं. इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही कोई पोजीशन खाली होती है, आप कहते हो कि जी पोजीशन की जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में सर्च कर देते हो. जब आप सर्च करते हो तो सिंस आपके सिस्टम में हर एम्प्लॉय की एजुकेशन, हर एम्प्लॉय के एक्सपीरियंसेस, हर एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ और हर एम्प्लॉय की करियर प्रेफरेंसेस होती हैं, ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम या आपका कंप्यूटर आपको बता देगा कि जी इस पोजीशन के लिए इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे लोग मौजूद हैं. फिर वो सारे लोगों में से यू चूज द बेस्ट इंडिविजुअल हु कैन डू द जॉब. सो दैट इज व्हाट स्किल इन्वेंटरी इज और एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम इज. The third step in the human resource planning process is going to be कि जी you match your HR supply and demand. अच्छा, इससे पहले हम एक चीज़ भूल गए. हमने आपको HR सप्लाई तो बता दी, हमने आपको HR डिमांड नहीं बताई. डिमांड इज बेसिकली इट कम्स के जी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कितने इंडिविजुअल्स चाहिए होंगे. एंड ये जो डिमांड है इट्स गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन द कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड द कंपनी गोल्स. कंपनी अगर ग्रोथ की तरफ जा रही है, फ्यूचर में उसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू मीन कि उसको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए हैं. इकोनॉमी अच्छी नहीं है और कंपनी स्टेटस को मेंटेन करना चाह रही है, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में उसको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए होंगे. सो डिमांड इज़ बेसिकली कि इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन में कितने इंडिविजुअल्स चाहिए होंगे. एंड अगेन डिमांड की बेसिस पर आप इंटरनल सोर्सेज ऑफ सप्लाई और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सप्लाई को देखते हो. अच्छा, जब हमने जॉब एनालिसिस भी कर लिया, हमने इंटरनल डिमांड और सप्लाई की भी हमने बात कर ली. द लास्ट स्टेप दैट यू डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज दैट यू मैच योर डिमांड विद योर सप्लाई. कि जी इंडिविजुअल हमारे पास हमको इतने लोग चाहिए और हमारे पास इतने लोग अवेलेबल हैं. जब आप मैचिंग कर रहे होते हैं डिमांड और सप्लाई के, देन टू थिंग्स कैन हैपन, ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग. ओवर स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि जी आपकी डिमांड तो कम है लेकिन आपकी सप्लाई ज़्यादा है. दैट मीन्स देयर आर मोर पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर रिक्वायरमेंट इज ऑफ लेसर पीपल. इस पर्टिकुलर केस में जब ओवर स्टाफिंग होती है तो फिर आप डाउन साइजिंग की तरफ जाते हैं, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं, या आप फायरिंग की तरफ जाते हैं, या आप एम्प्लॉयज़ को फारिग करने के बारे में सोचते हैं. ऑन दी अदर हैंड अंडर स्टाफिंग इज जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो और आपकी सप्लाई कम हो, कि आपको ज़्यादा लोग चाहिए हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कम लोग हैं. जब ये सिचुएशन पैदा होती है तो देन यू गो फॉर योर एक्सटर्नल सप्लाई सोर्सेज, कि आप एक्सटर्नल कॉलेजेस में जाएं और रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास जाएं और हायरिंग एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के पास जाएं, या आप अपने इंटरनल सप्लाई सोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं टू सी कि आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में किसके पास कितनी एक्सपर्टीज़ है कि हम उसको एक ज़्यादा बेहतर जॉब या ज़्यादा बेहतर पोजिशन उसको दे सकें. सो दीज आर द बेसिक 3 स्टेप्स इन HR प्लानिंग प्रोसेस. जितनी अच्छी HR प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में होगी उतनी ही अच्छी HR मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में होंगी. अगर आपकी HR प्लानिंग वीक है देन इट विल ऑटोमेटिकली लीड टू इनएफेक्टिव HR प्रैक्टिसेस एंड इट विल लीड टू इनएफिशिएंट ह्यूमन HR मैनेजमेंट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी नेगेटिवली या इन अ नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो सफ़र कर सकती है. Okay, just to further elaborate, as I always do, the whole HR planning process has been explained to you with the help of a figure as well. First up, you conduct a job analysis, minutely study each aspect of the job. As a result of this, you're going to come up with a job description document and a job specification document. Right or left, कुछ लिखा नहीं हुआ. I'm just having it just for the sake of it, okay? So don't get confused because job description हमको नजर नहीं आ रहा. Now, once you've done a job analysis, the next thing is you forecast demand for labor. Demand for labor is कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कितने इंडिविजुअल्स चाहिए हैं. ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़्यादा चाहिए होंगे, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो कम चाहिए होंगे. डिमांड की बेसिस पर आप सप्लाई को देखते हो. आप इंटरनल सप्लाई ऑफ लेबर को भी देखते हो जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिलती है, और आप एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ लेबर को भी देखते हो जो एक्सटर्नली आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन से मिलती है. इसके बाद आप डिमांड सप्लाई को मैच कर देते हो. अगर ओवर स्टाफिंग है तो फिर आप लोगों को फायर करना या निकालना शुरू कर देते हो, और अगर अंडर स्टाफिंग है तो आप ज़्यादा लोगों को हायर करना शुरू कर देते हैं. अब जब हम हायर करेंगे तो हायरिंग का क्या स्टेप होता है? द वेरी फर्स्ट स्टेप इन हायरिंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज समथिंग कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट. Recruitment is basically attracting qualified persons to apply for a job, or recruitment is basically whereby you're increasing the pool of applicants who are applying for a particular job. So when you see these ads in newspapers or magazines में आप
क्लासिफाइड्स देखते हैं, और कभी टेलीविज़न पर आपको नज़र आ जाता है, या कोई आपको बता देता है कि जी फलानी ऑर्गेनाइजेशन में वॉक इन इंटरव्यूज़ है. दीज आर ऑल रिक्रूटमेंट मेथड्स. रिक्रूटमेंट इज़ बेसिकली आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं अप्लाई करें. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि व्हेन यू हैव मोर people applying for a particular job, then that means that your probability of choosing the best among them automatically increases. समझ में आई मेरी बात? मतलब ये कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, then what will happen is that आप एज एन एम्प्लॉयर आपके पास आपको ये मौका मिलेगा कि उन ढेर सारे लोगों में से आप वो एक बेस्ट इंडिविजुअल चूज करें जो सबसे अच्छा है उनमें से. ठीक हो गया? अगर रिक्रूटमेंट आप नहीं करते, एडवर्टाइज नहीं करते एक पर्टिकुलर जॉब को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज नहीं करते जॉब को अप्लाई करने में, देन व्हाट विल हैपन इज कि एक या दो लोग अप्लाई करेंगे. अब आपको तो बंदा हायर करना है, अब एक या दो लोगों में से शायद दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, बट व्हाट यू विल डू इज कि यार मुझे तो बंदा हायर करना है, तो इन्हीं दो में से किसी ना किसी को हायर करना पड़ेगा. लेकिन जब आप फुली एडवर्टाइज करते हैं, सबको बताते हैं कि जी जॉब ऐसी है, उसकी ये डिस्क्रिप्शन है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये रिन्यूमरेशन मिलेगी, ये कंपनसेशन पैकेजेस हैं, ढेर सारे लोग अप्लाई करते हैं, आपके पास दैट्स द बेस्ट मौका कि जी आप सबसे बेस्ट तरीन बंदे को उस ग्रुप में से चूज करें. व्हेन यू चूज द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ दैट ग्रुप, दैट विल ऑटोमेटिकली मीन दैट द पर्सन विल बी एबल टू परफॉर्म वेल. इफ द पर्सन इज गोइंग टू बी एबल टू परफॉर्म वेल, then automatically that's going to mean more productivity for the organization. So that's the purpose of recruitment. Now recruitment is again, it can be internal recruitment and it can also be external recruitment. Internal recruitment basically is when you consider your employees who are serving within the organization or present employees को आप consider करते हो as candidates for opening. इसका मतलब है कि आपने जो नई jobs आई हैं, आपने उनको externally advertise नहीं किया, या आपने outside the organization advertise नहीं किया, आपने सिर्फ वो jobs अपने ही employees के लिए open की हैं, और आप expect करोगे कि आपके ही इंटरनल जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो उन पोजीशंस के लिए अप्लाई करें और उन पोजीशंस में आए. नाउ देयर इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव साइड टू इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड देयर इज अ नेगेटिव साइड टू इंटरनल रिक्रूटमेंट एज वेल. द पॉजिटिव साइड इज कि जब आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयज नई पोजीशंस पर हायर होते हैं, सो दे ऑलरेडी नो कि जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, दे ऑलरेडी आर अवेयर कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम होता है. सो जो सेटलमेंट का पीरियड होता है या सेटलिंग डाउन पीरियड होता है वो बिल्कुल होता ही नहीं. इंडिविजुअल तो ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही था, अभी भी वही है, उसको कोई मसला नहीं है. आज सेल्स में था, कल मार्केटिंग में चला जाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, काम तो वैसे ही करता रहेगा. कहीं कोई ब्रेक नहीं आएगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, कहीं कोई ये नहीं होगा कि जी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या काम करना है, या मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है. On the downside, what's going to happen अगर आप internal recruitment करते हैं कि जब आप within the organization से ही recruitment कर रहे होते हैं तो एक ना डब्बा इफेक्ट आ जाता है. Now डब्बा इफेक्ट is not a scientific term. It basically means is कि when you put an individual in a box, the individual is only going to think within the box, right? क्योंकि उसको तो बाहर की environment का पता ही नहीं है, वो जितना कुछ सोचेगा वो उस डब्बे के अंदर बंद होकर ही सोचेगा. समझ में आई? However, अगर आप बाहर से लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं, उनका जो स्कोप है वो ज़्यादा होता है, उन्होंने बाहर की एनवायरनमेंट देखी है, उनकी सोच नहीं होती है, दे आर मोर क्रिएटिव, दे आर मोर इनोवेटिव. सो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. जब आप इंटरनली हायर करते हो तो वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में रह रहकर स्टेल हो जाते हैं. उनको वही सिस्टम पसंद है ना, वो सिस्टम की इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, उनको वैसी ही चीज़ें पसंद हैं, दे आर नॉट बीइंग मोर क्रिएटिव, दे आर नॉट बीइंग मोर इनोवेटिव. ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया चेंज नहीं आता, कोई नए आइडियाज नहीं आते. Now the other type of recruitment is external recruitment. External recruitment is basically when you're considering outside applicants as candidates for a particular job. So किसी job opening के लिए आप outside the organization के जो लोग होते हैं उनको आप consider कर रहे होते हो. Again इसकी भी positive और negative points हैं. The positive side is when these people come from outside, they're more creative, they're more innovative, they're more energetic. They want to change things in an organization. They want to अब मैं तो आ गई और मैं सब कुछ change करके दिखा दूंगा. So that energy
that these people have is a very positive energy जो कि sort of translate हो सकती है या उस energy से और लोग positively affect हो सकते हैं. The downside is कि जब एक individual आता है तो वो पहले 2-3 महीने उसके सेटलिंग डाउन होते हैं, उसको पता नहीं होता कौन सी चीज़ क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, और इन शॉर्ट उसकी थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी सफ़र होती है. वो इतना जल्दी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकता. अगेन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जो जब आप बात करते हैं तो अगर आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन होगी तो ये जो हमने नेगेटिव पॉइंट की अभी बात की वो उसको फर्दर रिड्यूस कर देगा. लेकिन जनरली स्पीकिंग जब आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ जाएंगे और एक्सटर्नली लोगों को हायर करेंगे तो उस केस में आपके उन लोगों में जो सेटलिंग डाउन पीरियड होता है वो रिलेटिवली लंबा होता है एज कम्पेयर्ड टू योर internal employees. Now जब रिक्रूटमेंट कर ली तो रिक्रूटमेंट के बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि an organization is going to have a large number of applications available because अब आप recruitment करते हैं, आप कहते हैं कि जी we require a sales manager or sales executive who has a bachelor's degree in marketing, has 2 years of experience and should have good communication skills. और ये इश्तिहार आपने न्यूज़ की क्लासिफाइड में दे दिया. Now everybody and anybody who has these qualifications and who has these abilities and who has these experiences is going to apply for that job. This is what recruitment is. As a result of recruitment, your organization is going to get let's say 500 applications. Application 500 है, seat तो सिर्फ एक है, position तो सिर्फ एक है. So how do you choose the best person for a particular job? You do that through the selection process. Now selection is basically कि जो इतनी ढेर सारी applications आपके पास आ गई हैं, आप उसमें से one best individual या जितनी भी positions हैं उन positions के लिए आप best individuals को choose कर लें. Now different books will give you different selection methods, but generally speaking आपके जो 4-5 steps होते हैं selection के लिए. The very first step in the selection process is something called as an application form. एप्लीकेशन फॉर्म आप इंडिविजुअल से लेते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म पर आप उस इंडिविजुअल से वेरियस टाइप की इंफॉर्मेशन लेते हैं. जब इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर्म दे देता है तो उसकी बेसिस पर आप उसको टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के पास समटाइम्स और बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं अदर देन इंटरव्यूज एंड अदर देन टेस्ट जिसको ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है सिलेक्शन पर्पसेस के लिए. ना जब आप ये टेस्ट इंटरव्यू और टेक्निक्स के थ्रू इंडिविजुअल क्लियर हो जाता है या पास हो जाता है, देन यू हायर the individual. So the selection process starts with the application form. Application form पे जो individual सही लगते हैं आप उनको टेस्ट के लिए, इंटरव्यूज के लिए कॉल करते हैं, और जो इस पूरे प्रोसेस से लोग इंडिविजुअल्स निकल जाते हैं या पास हो जाते हैं आप उन इंडिविजुअल्स को हायर कर देते हैं. Now in the next slides we're going to study all these 3 things in greater detail. So the first thing is an application form. Now application form is that black and white paper that you have, right? And that paper basically asks questions जो कि आपके बारे में होते हैं. For example, what is your name, what is your first name, what is your permanent address, what is your current address, what is your email, what is your telephone number, what are your qualifications, what are your experiences, या आपके references क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपके application form में होती हैं. Now through the application form उसका purpose क्या होता है? application form का बहुत बड़ा purpose ये होता है कि application form के थ्रू आप एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं. जो जॉब स्पेसिफिकेशन फिल करते हैं आप उनको फर्दर टेस्ट या इंटरव्यूज के लिए कॉल करते हैं. जो स्पेसिफिकेशन फिल नहीं कर रहे होते आप उनका CV जो है या एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको साइड पर रख रहे होते हैं. सो द एप्लीकेशन फॉर्म बिकम्स द फर्स्ट फिल्टर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट एन एप्लीकेशन फॉर्म डज इज कि उसका प्राइमरी पर्पस एप्लीकेशन फॉर्म का ये होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका फर्स्ट फिल्टर बन जाता है. उस फिल्टर के थ्रू आप देखते हो कि कौन जो है वो जॉब स्पेसिफिकेशन पर उतरता है, कौन नहीं उतरता, और आप उनको फिल्टर कर देते हो या 2 डिफरेंट ग्रुप्स में उनको डाल देते हो. एंड अगेन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप बना रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, दे शुड मेक श्योर कि एप्लीकेशन फॉर्म में सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करें जो कि जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो या जो कि एम्प्लॉयर्स को हेल्प कर सके इन
determining if a person can do a job or if a person cannot do a job. तो जब आप application form again एक बहुत दफ़ा organizations में ये भी होता है कि through application forms you see कि जी क्या applicant instructions follow कर सकता है या नहीं कर सकता. For example, a very small example है इसके application forms में लिखा होता है write in block letters. अब मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मैंने वो जल्दी में पढ़ा नहीं, मैंने सारा स्मॉल लेटर्स में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया. जब वो ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ने कहना है कि ये बंदी जो है ये तो इंस्ट्रक्शन से नहीं फॉलो कर सकती, इतनी सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर सकती कि राइट इन ब्लॉक लेटर्स, तो कल को हम इसको हायर कर लेंगे तो कल को तो ये इसी तरह इररिस्पॉन्सिबल रहेगी, इसी तरह जल्दी में रहेगी. तो एप्लीकेशन फॉर्म बिकम्स द फर्स्ट स्टेप थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स कि जी क्या एप्लीकेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता. सो इस पॉइंट पर हमने लेसन ये लर्न करना है कि जब आप में से कोई एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करे तो प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट, बिकॉज ये हो सकता है कि आपकी हायरिंग या आपकी सिलेक्शन जो है वो डिपेंडेंट हो कि आप कितना अच्छे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं ना. जब एप्लीकेशन फॉर्म्स हो जाते हैं और उसमें से जो बंदे आप शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं उनको आप टेस्ट्स के लिए कॉल करते हैं ना. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टेक डिफरेंट टेस्ट. फॉर एग्जांपल आपके एबिलिटी के टेस्ट भी हो सकते हैं, आपके स्किल्स के टेस्ट भी हो सकते हैं कि एक बंदा कितने अच्छे से कोई जॉब परफॉर्म कर सकता है. आपके एप्टीट्यूड के भी टेस्ट हो सकते हैं कि क्या आपका एप्टीट्यूड इस तरफ है भी या नहीं है. अगर आप कहते हैं कि जी मुझे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है तो क्या आपका एप्टीट्यूड इंजीनियरिंग की तरफ है भी या नहीं है. या आप नॉलेज रेलेवेंट टेस्ट भी हो सकते हैं कि जी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके पास नॉलेज है या नहीं है ना. जब आप टेस्ट की बात करते हैं देन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बेसिकली इंश्योर कि सारे एप्लीकेंट्स जो कि टेस्ट के लिए अपेयर कर रहे हैं उनको एक जैसा टाइम देना चाहिए, सो दैट जो टेस्ट की ड्यूरेशन का टाइम है वो एक हो. एक जैसी कंडीशंस होनी चाहिए, एक जैसी टेस्टिंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए. ये ना हो कि जी जून जुलाई की गर्मी में आपने 4 एप्लीकेंट्स को बगैर एसी वाले कमरे में बिठा दिया और 4 को आपने एसी वाले कमरे में बिठा दिया. दोनों एनवायरनमेंट्स में जमीन आसमान का फर्क है. वो बेचारा बंदा जो बगैर एसी के है वो तो पसीना ही पोंछता जाएगा ना, वो टेस्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस सफर करेगी. सो टेस्ट देते वक्त आपको ये जरूर ख्याल रखना है कि सारे एप्लीकेंट्स को एक जैसी एनवायरनमेंट दी जाए, एक जैसा टेस्ट का जो ड्यूरेशन का टाइम है वो एक जैसा दिया जाए और डायरेक्शंस भी सबको एक जैसी दी जाए, सो दैट आपका टेस्ट फेयर हो, सबको सेम कंडीशंस पर आप एवेलुएट कर सकें. जब आप टेस्ट की बात करेंगे तो 2 very important concepts are there as well. Now validity and reliability. You need to hear this very very carefully so that you understand it. आपका टेस्ट वैलिड भी होना चाहिए और आपका टेस्ट रिलायबल भी होना चाहिए. Let's go reliability first. Reliability is basically that the test should be able to evaluate the same person in the same manner over and over and over again. इसका मतलब यह है कि अगर मैंने एक टेस्ट दिया है या आप लेट्स से कि आप लोगों ने जब आप BBA के लिए अप्लाई करते हैं आप NAT का टेस्ट देते हैं, NTS का टेस्ट देते हैं. अगर आपका NTS का स्कोर लेट्स से 65 आया है, ठीक हो क्या, तो NTS का टेस्ट तब रिलायबल होगा अगर आपका कंसिस्टेंट सेम स्कोर आता जाए. एक दफा टेस्ट या अगर हम अज्यूम के ये करें कि आपकी जो लेवल ऑफ मेहनत है या लेवल ऑफ हार्ड वर्क है दैट्स द सेम. इफ दैट इज द सेम देन आप जितनी दफा NTS का टेस्ट दें आपका स्कोर बिटवीन 63 and 67 ही आना चाहिए. अगर आता है तो दैट मीन्स कि NTS का NAT का टेस्ट रिलायबल है. अगर आपका NTS का टेस्ट स्कोर ये आता है कि एक दफ़ा आपने पढ़ाई की आपका 50 आ गया, दूसरी दफ़ा आपने पढ़ाई की आपका 85 आ गया, तीसरी दफ़ा आपने पढ़ाई की आपका 65 आ गया, एक चौथी दफ़ा आपने टेस्ट दिया तो आपका 44 आ गया, इस केस में NTS का NAT का टेस्ट रिलायबल नहीं होगा. सो कंसिस्टेंसी जो है कि जी सेम or similar results over and over and over again is what we mean when I say that a test should be a reliable test. Validity is कि जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है और जो आपकी जॉब परफॉर्मेंस है उसमें कोरिलेशन होना चाहिए. अगर आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करें, लेट्स से यू स्कोरिंग एन 85 इन द टेस्ट, दैट मीन्स दैट यू कैन डू द जॉब वेरी वेल. और जब आप एक्चुअल जॉब करते हैं तो आपसे तो जॉब होती नहीं है. इसका मतलब है कि द टेस्ट
cannot measure your performance with reference to the job. And if that is true, then the test is a not valid test. The test is not valid. Validity test की तब होगी जब आपका टेस्ट का स्कोर, आपने 95 स्कोर किया टेस्ट में और आप एक बहुत हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय भी हैं. इस केस में आपकी वैलिडिटी स्ट्रांग है. या आपने टेस्ट में फेल हो गए और हमने आपको इसलिए हायर नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि आप अच्छे से जॉब परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, उस केस में आपकी टेस्ट की वैलिडिटी बहुत हाई है. सो वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट बेसिकली मीन्स कि जो आपका टेस्ट का रिजल्ट है और जो आपकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट है उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए. सो जब भी आप टेस्ट की बात करेंगे, टेस्ट हैव टू बी रिलायबल एंड टेस्ट्स हैव टू बी वैलिड. नेक्स्ट इज कि जो लोग टेस्ट से फर्दर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज कि जी आप उनका इंटरव्यूज लेते हैं. इंटरव्यूज इज 1-to-1, 2 people sitting in front, or a panel or a group of people talking to that one applicant face to face and asking that person questions. Now these questions can be structured questions and these questions can be unstructured questions. Structured questions are those questions जो कि आप same questions हर एप्लीकेंट से पूछते हैं. सो 10 एप्लीकेंट से आप पूछेंगे जी आपका नाम क्या है, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका क्या ख्याल है हम आपको क्यों हायर कर लें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. अगर आप यही 4 क्वेश्चन सब इंडिविजुअल से पूछ रहे हैं, then that becomes a structured interview. An unstructured interview is that you're asking different questions from different employees. हर बंदे से जो आपके पास इंटरव्यू के लिए आ रहा है आप उससे एक फर्क सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. That is what an unstructured interview is. Again, depending upon the job, आपका इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है. बहुत सिंपल जॉब्स के लिए शायद अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू चलेगा, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स जॉब्स के लिए आपको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ती है. जो लोग इंटरव्यू से क्लियर हो जाते हैं उसके बाद जनरली उनको हायर कर लिया जाता है. लेकिन समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस माइट यूज़ अदर टेक्निक्स एज वेल. फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट है जॉब की, जहाँ पर जॉब से रिलेटेड आपको वेट उठाना है या जो मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं, अगर उनको एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं तो उनको एक फिजिकल एग्जामिनेशन ज़रूर रखना होगा. बिकॉज उनके जितने एम्प्लॉयज़ हैं दे गो टू दीज हाउसेज एंड पैक द स्टफ एंड देन उनको बॉक्सेस उठाकर वापस गाड़ी में रखने होते हैं. इस केस में शायद फिजिकल एग्जामिनेशन जरूरी है. सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब आप फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं. जैसे अगर आप आर्मी के आप फोर्सेस की सिलेक्शन की बात करें उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है. आप इंटरव्यू में निकल गए, आप टेस्ट में निकल गए, अगर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में आप फेल हो जाते हैं, यू कैन नॉट बी सिलेक्टेड फॉर आर्मी और फॉर फोर्सेज, राइट. सो दैट इज व्हाट फिजिकल एग्जामिनेशन इज. एंड देन अगेन कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ पर ड्रग टेस्टिंग भी ज़रूरी होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि जी वो क्या काम कर रही है. फॉर एग्जांपल अगर बहुत सेंसिटिव नेचर का काम है, वहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयज़ जिन लोगों को आप हायर करेंगे उनकी ड्रग टेस्टिंग भी करेंगे, क्योंकि ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का ये एडिक्शन तो नहीं है. सो दैट इज़ व्हाट ड्रग एडिक्शन इज़. Now, इस पॉइंट इन टाइम पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमने अभी सिलेक्शन के स्टेप्स पढ़े या डिफरेंट चीज़ें सिलेक्शन के रेफरेंस से पढ़ी, आप दूसरी बुक्स खोलेंगे यू माइट सी अदर स्टेप्स एज वेल, राइट. उसमें कहीं पर आता है कि जी पर्सनालिटी टेस्ट भी होते हैं. सम बुक्स है कि जी रिटन एंड पेपर एंड पेंसिल टेस्ट भी होते हैं. सो डिफरेंट बुक्स विल गिव यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन मेथड्स, बट जनरली मोर और लेस दीज आर द 3-4 different types that we would have in every book. Now, it's not necessary that all organizations use all steps. ये मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स भी ले, टेस्ट भी करवाए, इंटरव्यू भी करवाए और फिजिकल एग्जामिनेशन भी करवाए. डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिग और स्मॉल द ऑर्गेनाइजेशन इज, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इम्पोर्टेंट द जॉब इज, आपके डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट स्टेप सिलेक्शन में यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने गार्ड्स की हायरिंग करनी है, एक रेगुलर सिक्योरिटी गार्ड की हायरिंग करनी है, तो शायद एप्लीकेशन फॉर्म और इंटरव्यू काफ़ी है. लेकिन अगर हमने एक क्लोज प्रोटेक्शन सिक्योरिटी गार्ड की हायरिंग करनी है तो उस केस में हम उसका एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, उससे फायरिंग का उसका टेस्ट लेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे. सो डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ जॉब यू हैव, आपका जो सिलेक्शन मेथड्स हैं वो चेंज होते रहते हैं. सो डोंट एवर मेक अ मिस्टेक कि जी हम आपसे पूछेंगे जी सिलेक्शन मेथड्स कौन से हैं तो आप सारे के सारे लिखें. यू चूज द बेस्ट or you choose the ones which are more suited for an organization and you say कि जी या तो एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा और इंटरव्यू हो जाएगा, या सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ना इंटरव्यू होगा, ना टेस्ट होगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग अपॉन
how much money you have, how much time you have for hiring of people, آپ اپنا selection method کو selection steps کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں. سو اچھا نیکسٹ تھنگ از کہ جی ٹھیک ہو گیا, ہم نے ریکروٹمنٹ بھی کر لی اور ہم نے سلیکشن بھی کر لی. جب آپ سلیکٹ کر لیں گے امپلائیز, اینڈ واٹ یو ول فیل ایز اے سیٹ, جیسا میں شروع میں بھی چیپٹر کے بتایا, اٹس ناٹ نیسسری دیٹ آل یور امپلائیز آر ایٹ دا سیم لیول. مطلب کہ آپ نے جتنے لوگوں کو, شاید آپ نے سب کو, سارے ایم بی ایس کو ہائر کیا, آپ نے آرگنائزیشن میں 5 بندے ہائر کیے, ان 5 کے 5 ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ایم بی اے ہیں. تو جب وہ آرگنائزیشن میں ہائر سلیکٹ ہو جائیں گے اور آپ کے آرگنائزیشن کو جوائن کر لیں گے, جب آپ ان کو اسیس کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان 5 کے 5 ایم بی ایس میں ڈفرینسز ہیں. کسی کے کمیونیکیشن اسکلز ویک ہیں, کوئی کسی کے انالیٹیکل اسکلز ویک ہیں, کوئی کسی کے ڈیسیجن میکنگ اسکلز ویک ہیں, کسی کو تو بھائی سمپل یہی نہیں پتا کہ انٹرنیشنل بزنس کیا ہوتا ہے, اسٹریٹجک الائنسز کیا ہوتی ہیں, جوائنٹ وینچرز کیا ہوتے ہیں. کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو شاید یہ نہیں پتا کہ جی فائنانس کیا چیز ہوتی ہے اور اکاؤنٹنگ میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. So when you hire people and when you select people, then you also sometimes seek on individuals میں کیا deficiencies ہوتی ہیں, اور ان deficiencies کو remove کرنے کے لیے آپ ٹریننگ کی طرف جاتے ہیں. ٹریننگ از بیسکلی کہ آپ ان کو ایکسٹرا نالج, ایکسٹرا اسکلز ان کو سکھاتے ہیں. Now at this point in time you need to make a differentiation between training and development. A lot of time موسٹلی آرگنائزیشنز جو ہیں ان دونوں ورڈس کو انٹرچینجبلی یوز کرتی ہیں, ٹھیک ہو گیا, لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دونوں میں ڈفرینسیشن کر سکیں. نا یور ٹریننگ از جنرلی ڈن, جو کہ آپ کے فرنٹ لائن مینیجرز ہوں گے نا, یا جو آپ کے بلو کالرڈ ورکرز ہوں گے, ان کے لیے ہم ٹریننگ یوز کرتے ہیں. اور جب ہم اسکلز کی بات کرتے ہیں اور ایبلٹیز کی بات کرتے ہیں اور ہم انہانسنگ ایبلٹیز کی بات کرتے ہیں, وہ اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ وائٹ کالرڈ ورکرز کے لیے یوز ہوتی ہے. سو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بوتھ مین دا سیم تھنگ, لیکن اگر آپ بلو کالرڈ ورکرز کو کریں گے تو اس کو ہم ٹریننگ کہیں گے, اور اگر آپ وائٹ کالرڈ ورکرز کو کریں گے تو ان کو آپ ڈیولپمنٹ کہیں گے. ناؤ یو آر ونڈرنگ کہ جی یہ بلو کالرڈ ورکرز اور وائٹ کالرڈ ورکرز کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو ڈریس شرٹ پہنتے ہیں اور کسی کی بلو کالر اور کسی کے وائٹ کالرز ہوتے ہیں. I'll explain to you کہ جی blue and white collared لوگ کون ہوتے ہیں, but I also want you to look these two terms up on internet as well and Google them. Blue collared workers وہ workers ہوتے ہیں جو managerial cadre کے نہیں ہوتے, جو staff ہوتا ہے وہ blue collared worker ہوتا ہے. On the other hand جو آپ کے managers یا مینیجر کیڈر کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے وائٹ کالرڈ ورکر ہوتے ہیں. سو جو فیکٹری فلور کا سپروائزر ہے وہ بلو کالرڈ ورکر ہوگا, لیکن جو آپ کا اسسٹنٹ مینیجر ہے وہ آپ کا وائٹ کالرڈ ورکر ہے. سو دیٹ از ڈسٹنکشن بٹوین یور بلو کالرڈ ورکر اینڈ یور وائٹ کالرڈ ورکر. ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ بلو کالرڈ ورکر کی ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ وائٹ کالرڈ ورکر کی ہوتی ہے. اینڈ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ڈفرنس صرف یہ آئے گا کہ کون سے ٹائپ کا ورکر اس کو کر رہا ہے, ٹھیک ہو کیا. ہم صرف یہاں پر ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہاں پر 3 ڈفرینٹ ٹائپس کی ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں. فرسٹ اپ از آن دا جاب, ویئرز مائی کرسر, فرسٹ اپ از آن دا جاب, سیکنڈ اپ از آف دا جاب, اینڈ تھرڈ اپ از ویسٹیبیول ٹریننگ. On the job training is that training when an employee is learning new things while working. ٹھیک ہو گیا. بہت دفعہ آپ فیکٹری میں لوگ ہائر ہو جاتے ہیں یا آپ کے مستری ایسے ہوتے ہیں جہاں جو کہ اینٹ اور سیمنٹ سے دیوار بنا رہے ہوتے ہیں. ایک نیا بندہ آتا سو نہیں آتا, مستری جو ہے, جو ماسٹر مستری ہے, وہ سکھاتا ہے کہ جی یہ کام آپ نے ایسے کرنا ہے, اور ڈیورنگ دا جاب اس کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ کام آپ ایسے کریں. سملرلی بہت دفعہ آپ ایم بی اے کر کے آرگنائزیشنس کو جوائن کریں گے, آپ فائنانس کے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے, آپ مارکیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے, اینڈ آپ کے جو باسز ہیں یا آپ کے جو امپلائرس ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوں گے while you're actually working. So on the job training is کہ آپ نئی چیزیں سیکھتے رہتے ہو, لیکن وہ نئی چیزیں آپ کام کے دوران سیکھتے ہو یا جاب کے ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہوتے ہو. That is what we call as on the job training.
सेकेंड टाइप इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज कि आप एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट से इंडिविजुअल को ले जाते हो, क्लासरूम सेटिंग में या वर्कशॉप सेटिंग में या सेमिनार की सेटिंग में आप उसको लेकर जाते हो और वहाँ पर बिठाकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप उसको लेक्चर्स देते हो, आप उसको प्रेजेंटेशन देखते हो या आप उसको उसके स्किल सिखाते हो. बहुत दफ़ा आप जब बैंकिंग सेक्टर में जाएँ तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत दफ़ा होता है कि जो नए उनके ट्रेनीज होते हैं उनको वो डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट ट्रेनर्स होते हैं या डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं और वो उनको उन ट्रेनिंग सेंटर्स में ले जाकर ये फ्यूचर बैंकर्स को डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग के बारे में ट्रेनिंग दे रहे होते हैं. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वेयर बाय द एम्प्लॉय इज टेकन आउट ऑफ द एक्चुअल एनवायरनमेंट एंड ही और शी गोज इनटू अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जहाँ पर क्लासरूम सेटिंग में या वर्कशॉप्स सेटिंग में या सेमिनार्स की सेटिंग में या रोल प्लेइंग के थ्रू या एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू आप उनको डिफरेंट चीज़ें सिखाते हो. Finally, you have vestibule training. Vestibule training is a simulators की जब हम बात करते हैं. Simulator is a type of vestibule training. So जो आपकी एयरफोर्स में या जो फ्लाइंग में जो एयरफोर्स की बात करते हैं, जो कैडेट्स होते हैं, बहुत दफ़ा उनको पहले दिन ही आप जहाज में नहीं बिठा देते, आप उनको जहाज के सिमुलेटर्स में बिठाते हो. सिमुलेटर is not a plane, it's basically a machine जो कि एक प्लेन की एक्टिविटीज़ को रेप्लिकेट करती है. और जब वो कैडेट उसमें बैठता है तो उसमें बैठते ही वो उसको लगता है कि वो एक कॉकपिट में बैठा है और उस सिमुलेटर्स के सारे कंट्रोल बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं जहाज़ वाले. और वो सिमुलेटर्स में शुरू में प्रैक्टिस करता है कि जहाज़ को कैसे उड़ाना है. जब सिमुलेटर से वो प्रैक्टिस कर लेता है फिर उसको एक्चुअल जहाज़ में बिठाते हैं. सो सिमुलेटर इज बेसिकली is gives an individual actual work environment और इस actual work environment में एक ऐसी actual work environment होती है जो actual तो नहीं होती है लेकिन एक उसकी आप simulation आपने बनाई होती है उसकी और उसमें बिठाकर आप individual को चीज़ों को उसको बता रहे होते हो और आप उसको सिखा रहे होते हो. सो दैट इज़ व्हाट वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज़. सो बेसिकली जब हम ट्रेनिंग द वर्कफोर्स की बात करेंगे तो आपके पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग आ जाएगी, आपके पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आ जाएगी और आपके पास वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आ जाएगी. ऑन द जॉब इज़ यू लर्न वाइल यूर वर्किंग. ऑफ द जॉब इज़ कि आप जॉब नहीं कर रहे होते हो, आप पहले ट्रेनिंग करते हो फिर जॉब करते हो. एंड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज़ कि आप ऐसे इक्विपमेंट को यूज़ करते हो जो कि एग्जैक्टली रेप्लिका होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट का और आप उसके ऊपर चीज़ों को सीख रहे होते हो. सो दीज आर द बेसिक 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स दैट एन इंडिविजुअल कैन गो फॉर. अच्छा जी, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि जी हमने रिक्रूटमेंट भी कर ली, हमने सिलेक्शन भी कर ली, हमने इंडिविजुअल्स को ट्रेन भी कर दिया. इसका मतलब है जब ट्रेनिंग कर दी है तो फिर वो काम करना शुरू हो गए. जब वो काम करना शुरू हो गया और उनको 1 साल हो गया काम करते हुए, फिर आपको उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी होती है. परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली इज एवेल्युएशन ऑफ अ कंपनी जॉब परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू डिटरमिन द डिग्री टू विच द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग इफेक्टिवली. सिंपल इंग्लिश में इसका मतलब ये हुआ कि परफॉर्मेंस अप्रेजल ये होती है परफॉर्मेंस अप्रेजल ये होती है कि आप एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखते हो, आप उसको एनालाइज करते हो और देखते हो कि जी वो जो काम कर रहा था पूरे साल उसने वो काम कितने अच्छे तरीके से किया. दैट इज़ व्हाट जॉब परफॉर्मेंस इज. नाउ जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करोगे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने शुरू में भी बात किया आता है कि आपने एम्प्लॉय को एग्जैक्टली बताना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं या आपके डिलीवरेबल्स क्या हैं. आप क्या चाहते हो कि वो एम्प्लॉय कैसे या क्या परफॉर्म करे या क्या अचीव करे. जब आप ये बहुत क्लैरिटी से उसको बता देते हो तभी आपकी इफेक्टिव अप्रेजल हो सकती है. सो बेसिकली अप्रेजल इज कि एवेल्युएट करते हो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कि क्या वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है या क्या वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा. नाउ अप्रेजल का जो प्रोसेस होता है इट्स अ 3-step प्रोसेस. फर्स्ट आप डिफाइन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. वही बात जो मैं बार बार बता रही हूँ. सबसे पहला काम आपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को बताना है. यू नीड टू टेल योर एम्प्लॉय व्हाट यूर एक्सपेक्टिंग ऑफ दैट पर्सन. यू नीड टू टेल योर एम्प्लॉय कि जी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम चाहते हैं कि आप ये अचीव कर लें, हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ये अचीव कर ले. द सेकेंड स्टेप दैट यू डू इज दैट यू ऑब्जर्व एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. आपने उसको स्टैंडर्ड आपने उसके लिए सेट कर दिया. द सेकेंड थिंग दैट यू विल डू इज यू आर गोइंग टू सी कि जी एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म कर रहा है. ठीक हो गया, दूसरा काम भी कर लिया. नेक्स्ट इज
you compare the actual employee performance with with the goals that you set for the employee. If the performance is in accordance with the goal, or if the goals have been met through the performance of the employee, then that means कि आप शाबाशी दो बंदे को, ताली बजाओ उसके लिए, पिक्चर लगाओ उसके ऑर्गेनाइजेशन में, and you give him a perfect ideal performance appraisal. However, on the flip side, if the performance was not good enough and the goals that you set for the employee were not met, then that means कि आपको देखना पड़ेगा. इस केस में भी आपके multiple issues हो सकते हैं. ये हो सकता है कि शायद आपने जो रिक्रूटमेंट की वहाँ पर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट सही नहीं था. ये भी हो सकता है कि जो आपने सिलेक्शन डिवाइसेस यूज़ की वो भी सही नहीं थी. शायद आपको एबिलिटी टेस्ट यूज़ करना चाहिए था और आपने स्किल टेस्ट यूज़ कर लिया. ये भी हो सकता है कि आपने जो ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई किए, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की, वो सही नहीं थी. आपने बंदे को कम्युनिकेशन में ट्रेन कर दिया, बंदे को तो मसला अकाउंटिंग में था. सो आपको यू नीड टू सी कि जी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशंस में क्या डिफरेंस है. अगर डिफरेंस नहीं है फिर तो कोई मसला नहीं, गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल. बट अगर डिफरेंस है तो फिर आपको उस डिफरेंस के लिए वजह भी ढूंढनी है. बंदा सही हायर नहीं हुआ, बंदे के पास सही एबिलिटी, नॉलेज या स्किल्स नहीं है, या बंदे की ट्रेनिंग सही से नहीं हुई है. ठीक हो गया. Now what we're going to do is we're going to end our lecture number 15 here. Again, हाँ, इसका मतलब नहीं कि हमने chapter number 8 ख़त्म कर लिया. Chapter number 8 हम अगले lecture में ख़त्म करेंगे. A very quick recap of what we've done so far. Again, I think personally speaking, ये सारे जो chapters हम आजकल कर रहे हैं, they're my favorite because interesting भी हैं, हम इनसे relate भी कर सकते हैं, और again they're not that difficult to understand. इस particular chapter में हमने basically हम बात कर रहे हैं वर्क फोर्स की, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, या ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस की. हमने सबसे पहले आप लोगों से बात की कि जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है. सेकंड, हमने आपसे बात की कि 2012 में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है. उसके बाद हमने आपको बताया कि जी आप सबसे पहले जो है सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए HR प्लानिंग करते हैं. HR प्लानिंग में आप सबसे पहले अपना जॉब एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आप डिमांड एंड सप्लाई को देखते हैं, और फाइनली आप डिमांड एंड सप्लाई को मैच करते हैं टू सी कि ओवर स्टाफिंग है या अंडर स्टाफिंग है. तो आपने ये कर लिया, तो उसके बाद आप रिक्रूटमेंट की तरफ जाते हैं. रिक्रूटमेंट इज़ बेसिकली वेयर बाय यूर इंक्रीजिंग द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें. जब आप रिक्रूटमेंट की तरफ जाएंगे तो आप इंटरनल रिक्रूटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तरफ भी जा सकते हैं. इस पॉइंट इन टाइम में हमने ये भी आपको एक्सप्लेन किया था कि इंटरनल रिक्रूटमेंट के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं. जब रिक्रूटमेंट होगी और ढेर सारे CVs और एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके पास आ गए, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सिलेक्शन करेंगे. सिलेक्शन इज बेसिकली फिल्टरिंग डाउन और शॉर्ट लिस्टिंग पीपल सो दैट यू कैन फाइंड दैट वन इंडिविजुअल हु कैन सक्सेसफुली परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब. ना सिलेक्शन जो है वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म से शुरू होती है. उसके बाद आप डिफरेंट टाइप के टेस्ट उससे ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन की जॉब रिक्वायरमेंट क्या है. फिर आप उसका इंटरव्यू करते हैं, या अगर ज़रूरत है तो फिजिकल टेस्ट या ड्रग टेस्टिंग भी करते हैं, और उसको हायर कर लेते हैं. हमने आपको बहुत क्लियरली बताया कि हर जॉब में ज़रूरी नहीं कि आप हर सिलेक्शन डिवाइस यूज़ करें. डिपेंडिंग अपॉन द जॉब, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम that an organization has, depending upon the money that the organization want to spend on the selection process, depending upon what type of job are they hiring for, आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो फ़र्क होगा. गार्ड की सिलेक्शन फ़र्क प्रोसेस से होगी, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सिलेक्शन एक फ़र्क प्रोसेस से होगी. जब आप सिलेक्शन कर लेते हैं तो फिर आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की तरफ आते हैं. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इज़ बेसिकली, हमने आपको पहले डिफ्रेंशिएट किया कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है. ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स ट्रेनिंग करते हैं, वाइट कॉलर्ड वर्कर्स डेवलपमेंट करते हैं. जब हमने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात की तो हमने आपको बताया कि आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होती है, आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी होती है, और आपकी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग भी होती है. ऑन द जॉब इज़ योर ट्रेनिंग वाइल यू आर वर्किंग. ऑफ द जॉब इज़ आपको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में लेकर जाते हैं और क्लासरूम्स में बिठाकर आपको पढ़वाते हैं. एंड वेस्टिब्यूलर्स जहाँ पर आप सिमुलेटर्स को यूज़ करते हुए आप जो है ट्रेनिंग करते हैं. फाइनली जब ट्रेनिंग भी हो गई तो फिर आप परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, आप एवेलुएट करते हैं कि एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अच्छी भी थी या नहीं अच्छी थी. एवेलुएशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 3 स्टेप्स को फॉलो करें. फर्स्ट आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं, सेकेंड आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हैं, और थर्ड इज़ आप
امپلائی کی پرفارمنس کو ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ میچ کرتے ہیں ٹو سی کہ کیا سیم ہے یا نہیں ہے. اگر پرفارمنس اور ایکسپیکٹیشن سیم ہے تب تو شاباشی ملتی ہے, اگر پرفارمنس اور ایکسپیکٹیشن سیم نہیں ہے تو پھر مسئلے رائز ہوتے ہیں. پھر آپ سوچتے ہو کہ شاید آپ نے ٹریننگ صحیح نہیں کروائی, یا آپ کی سلیکشن صحیح نہیں تھی, یا آپ کی جاب اسپیسیفکیشن جاب ڈسکرپشن میں کوئی مسئلہ ہے. So we're going to end our lecture number 15 right here, right now, and very quickly I would want you to insert your next CDN so that you can finish the entire chapter number 8 that we are still doing. ٹھیک ہو گیا. So in a very short while I'll be seeing you again for lecture number 16. Thank you.